Ladies and gentlemen, I welcome you all to the H2 and FY25 post-earnings conference call of Madhusudan Masala Limited. Today on the call from the management we have with us Mr. Rishit Kotecha, Chairman and Managing Director, and Mr. Kirit Dharavia, CFO. As a disclaimer, I would like to inform all of you that this call may contain forward-looking statements which may involve risk and uncertainties. Also, a reminder that this call is being recorded. I would now request the management to run us through the investor presentation and the business and performance highlights for the period ended 31st March 2025, their growth plan and vision for the coming year, post which we will open the floor for Q&A. Over to the management team. Over to you, sir. Yes, thank you, Vinayji. Good afternoon, everyone. Myself, Rishit Kotecha, Managing Director and Chairman of the company. I will introduce my company with the presentation. As we are Madhusudan Masala Limited, we are doing spices manufacturing with our brands Double Hathi as a leading brand and other three brands like Mantavya, Maharaja and Double Seven. We are selling our products in four brands. Since 1977, we have started our business from the very ground level. My father and his brother had started the business. Later, me and my cousin Hiren Kotecha joined the business in 2003. Then after we take the business to the out of the Gujarat and other states also. These are our timeline history. In 1977, the Double Hathi brand is introduced in the market. In 1980, we started our own soap in Jamnagar grain market. In 1982, we formed a partnership from Madhusudan and Company to run the business as a spices manufacturing. And later in 1996, we introduced our spices in polypack like 50 gram to 1 kg. Earlier, we did sell only spices in bulk pack of 10 kg jute bag. Later, we started bulk polypacks in 1996. In 2000, we have got the certificate of AGMARK for our spices products. In 2003, we introduced our another brand Maharaja for economy market because Double Hathi is a premium product. So in some other market, we need to introduce economy brand. So we introduced Maharaja as an economy brand in our portfolio. In 2015, we established state-of-the-art manufacturing plant at industrial area Hapa in Jamnagar, which is also near by APMC market in Jamnagar. In 2016, we obtained FSSI certifications. In 2015, we established our own cold storage facility to store our raw material. In 2021, we converted our partnership firm into private limited, and later in 23, we converted it into limited company, and then we listed our company on NSE SME platform. And in 2024, we established our second cold storage unit for storing our captive raw material for our exclusive storage. And also we acquired 100% equity stake in Vitagreen Products Private Limited. And we also appointed super stockists and distributors in Maharashtra and Goa. And some super stockists also appointed in Telangana state also in 2024. This is our business model, how we work. Like first of all, we are procuring the raw material in respected season, so that we
we got the good quality of raw material in respected season, and also we got the benefit of price in respected season. The prices are on lower side, so we got the price benefit also and the quality benefit also. So from our starting of our business, we are procuring mainly 70% of our requirement for the next year. We procure the raw material in the respected seasons. Then we make it strict quality controls. Then after we store the raw material in our own cold storage, or if required, we also store the raw material in third party storage facility also. Then as per the requirement of making a batch-wise manufacturing, we put the material to our manufacturing facility, and we manufacture it as per our batch requirement. Then processing like picking, cleaning, and drying, grinding. These are the process of our spices. Uh, Spices, and after processing, the product will be packaged in the different kind of different size of SKUs, and then we distribute the products to distributors, or we have a direct billing customers also from the our company. So last stage is to distribute the products to our distributors. These are our product portfolio. We have a three brands: Double RC, Maharaja, and Mantavya, which are comes under Madhusudan Masala Limited. And Double RC is an entire portfolio like ground spices, chili, turmeric, coriander is and chili, turmeric, coriander. And then after blended spices like garam masala, kitchen king masala, pav bhaji masala, etc. Masalas are come under the blended spices, and it's introduced in Double RC brand only. While whole spices business is also our big selling category. There we have 500 to 1 kg of packaging in this category, and the majority sale of this whole spices is coriander, cumin, and whole chili. And then after we have another category of grocery products, which are consisting of some major products like kasuri methi, mango powder, ginger powder, rajgira flour, achar masala, soya products. All are common terms under the grocery products. These all products are introduced in Double RC brand only, while Maharaja and Mantavya brands are for only ground spices products only. And later we have acquired brand Vitagreen. 77 Green is a brand of Vitagreen Products Private Limited, which was acquired in 2024. This 77 brand is also categorized in ground spices, blended spices, and grocery products. And one different product category is in 77 is instant mix, which consisting of gulab jamun, mendu vada, khaman dokla, idli, dosa. These are coming in instant mix category. So moreover, these all are product bifurcation of our entire product portfolio. Our manufacturing process is very simple. Like spices, when we got the raw material to our manufacturing unit, first of all, we have to dry this raw material in natural sunlight, or we have a dryers also. So then after the drying of the product, we send it to the cleaning process. Then after the cleaning of the raw material, this raw material get grinding in the pulverizers. Then the blending process is started, like some 2 or 3 raw material blends are being blended, then sieving, and then after the required as per the required SKU, the last stage is packaging. This is our manufacturing unit 1 at Jamnagar.
which was established in 2015 at Hapa Industrial Area. Our manufacturing capacity is 4,800 metric ton, and we are happy to inform you that we have achieved 82% of capacity utilized in FY25. This is our second unit, which is at Metoda Industrial Area in Rajkot, which is acquired in 2024 as a Vitagreen Products Private Limited. There we are manufacturing only blended spices products and instant mix product at this facility. The ground spices and other grocery products are being manufactured at our Jamnagar unit. And SFG material to be sent was sent to this Rajkot unit, and then packaging of different size of SKUs would be carried out by this Rajkot unit. So we are also happy to inform you that out of the 600 metric ton capacity of Vitagreen products, we have achieved 82% of capacity from this unit also. This is our geographical presence. We have our majority sale in Gujarat state and Maharashtra state only. And recently we have started some northern states like Chandigarh, Uttar Pradesh, Jammu Kashmir, and Punjab. All these states are already working with Vitagreen Products Private Limited, and then we got the company and also get the entire sales channel to Madhusudan umbrella. We have a plan to cover this Rajasthan, Madhya Pradesh, and Jharkhand states in this FY26. Maybe we will start Rajasthan from the Q1 of FY26. Some of our marketing initiatives, like we are deploy soft fascia to our retailers. So when end user come to the retailer shop, they show our brand at the retailer. These are marketing initiative like free sampling, expansion of dealer distributors. We also doing seasonal advertising in news media and hoardings, FM, radio, etc. These are doing in our respected seasons. And we also exhibit in our some food exhibition to introduce our products to the new regions. So this will get also help to get our new distributors and sales partners to sell our products. These are the glimpse of our holdings initiatives, and we also attend one annual general meeting of our entire sales team at any good location of Pain India. Last year we attended sales AGM at Silvassa, so the entire team will be aware of what we did in last year and what we will have to achieve in next year. We give the targets to our entire team and how we can achieve and what the market needs. These are the agenda of the meetings to our AGM. We have a projected 5-year sales target is 30%, and definitely we will achieve the CAGR of 30% of CAGR for the next 3 to 5 years. These are our financial highlights. We have achieved 23 to 30 CR, 230 crore, 230 CR
revenue we have achieved in this financial FY25. And in Madhusudan, we have achieved 216 CR of revenue from Madhusudan only. The EBITDA is also maintained, and PAT is also maintained to the last year. These are our growth strategy. We are continuously growing our sales from past 5 years. And also we are maintaining our EBITDA and PAT margin while we are growing in new states, but somehow we are managed to keep our EBITDA and PAT margin to the last year. These are our category-wise bifurcation. Like we have a branded and non-branded sales in Madhusudan. So we managed to maintain the branded sales higher than 60%, above 62%, and compared to last year of 56%. So this is our big achievement that we managed to grow our non-branded branded sale business. And also our category-wise sales is improved from this FY25. These are our product baskets. This is a Mantavi and Maharajaga. These all products are from 777 portfolio. We also did a CSR activity last year, like we donate medical equipments in government hospital at Jamnagar, and we also donate one cremation, one Antim Yatra bus to Jamnagar crematorium. This we did under CSR activities. Thank you. So we'll take questions and answers now. Yes. Sure. Thank you. All those who wish to ask a question, use the option of raise hand. In case you're unable to do that, I would request that you please put your request in the chat window and we'll invite you to ask the question. We'll take the first question from Vijay Chauhan. Vijay, you can go ahead. Yeah, thank you for the opportunity and congrats on good set of numbers. So on the standalone side, if you look at the H2 performance, so if I look at the performance in terms of standalone, it was some 108 crore previous H2 last year, and we managed to do around 123 odd CR. So on standalone side, like, was there any challenges or is this the normal growth rate we should take for the future year as well? Or was there any material change or some slowdown temporary? So this is my first question. Okay. Yes, thank you for your question, Vijay ji. See, इसमें क्या है कि हमारा जो बिजनेस है वो जनरली ऐसे रहता है कि फर्स्ट हाफ जो है वो थोड़ा स्लो रहता है, और सेकंड हाफ रहता है वो सीजन का पीरियड होता है, और उसमें शादी वगैरह का भी उसी पीरियड में रहता है। तो उस H2 पीरियड में हमारा जनरली जो सेल्स है वो अच्छा रहता है। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था कि फर्स्ट हाफ में हमने जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए थे, जो विटाग्रीन के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड थे नॉर्थ के स्टेट में, तो वहां से हमें जो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के बनाने से जो एक लास्ट जो अगस्त सितंबर में हमें जो ऑर्डर्स मिले थे, तो उस वजह से हमारा जो H1 था वो जनरली हम जो 1/3 2/3 का हमारा रेशियो रहता था अब तक का, तो इस लास्ट ईयर हमारा ऐसा हुआ कि एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ वी गॉट द गुड डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम नॉर्दर्न स्टेट्स,
तो वहां से हमें अच्छा एक ऑर्डर मिला। और जो हमारा नॉन ब्रांडेड बिजनेस है उसमें भी कुछ जो दिवाली के बाद की जो सीजन होती है अजवाइन कोरिएंडर की, वो थोड़ी सीजन अर्ली रही थी, तो हमारा एक नॉन ब्रांडेड का भी जो सेल्स रहा वो भी फर्स्ट हाफ में ज्यादा रहा था। तो उस वजह से जो 1/3 2/3 का रेशियो है वो थोड़ा श्रिंक होके 1/3 ये फर्स्ट हाफ में भी हमारा सेल्स अच्छा रहा था। तो इस वजह से जो कंपेयर टू 24 जो H1 का जो ग्रोथ है वो आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन एंटायर थ्रू आउट द एंटायर ईयर हमने ऑलरेडी 33% का ग्रोथ अचीव किया है। Okay, okay. And what will be the plan for the next year on the standalone side and also on the Vitagreen side in terms of revenue FY26 internal estimate जो भी आपने प्रोजेक्ट किया हो? हाँ, वो एज पर वो प्रोजेक्शन 30% तो मिनिमम रहेगा हमारा। और ये 30% जो है वो स्टैंड अलोन भी वही रहेगा, और विटाग्रीन से हमारा कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो शायद वहां से कुछ 30 से लेके 40% तक का हमारा प्रोजेक्शन दिख रहा है हमें इस साल के लिए। ओके ओके, सो 216 करोड़ का जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू है उस पे भी वी आर एक्सपेक्टिंग 30% काइंड ऑफ ग्रोथ, और जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे है उस पे भी वी आर लुकिंग एट लीस्ट 30%, राइट? यस, यस। Yeah. Okay. Okay. And last thing on the margin side, matlab, will we see any margin expansion, or because we are aggressively entering the new geographies, or margins will more or less remain constant, or any guidance you would like to give to EBITDA margin side or PAT margin, whatever you are comfortable with? मैं एबिटा के बारे में बताऊं तो एबिटा तो हमारा मेंटेन हो पाएगा, क्योंकि हम जब नए मार्केट में एंटर करते हैं तो ऑब्वियसली मार्केटिंग एक्टिविटीज और स्टाफ की एक्सपेंस के बाद थोड़ा एबिटा पे प्रेशर आ सकता है। लेकिन अभी जो आप एबिटा है वो कॉमन Mm-hmm. एबिटा है हमारा ट्रेडिंग जो नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड बिजनेस का। तो कॉन्स्टेंटली हम लोग क्या है कि जो नॉन ब्रांडेड हमारा जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसको कम करते जा रहे हैं। तो लास्ट Mm-hmm. ईयर हम 46% हमने किया था नॉन ट्रेडिंग बिजनेस, इस साल हमारा Mm-hmm. वही 38% हुआ है। तो अगले साल Mm-hmm. हम इससे भी हमारा जो ट्रेडिंग बिजनेस है वो कम हो जाएगा। तो जहां पर लो मार्जिन हमारा बिजनेस है वो हम कम करके जो हाई मार्जिन Mm-hmm. हमारी कैटेगरी है ब्रांडेड बिजनेस की वो हम बढ़ाएंगे, तो उससे हमारा एबिटा मेंटेन रहेगा। Okay, so margin 10-11% जो रेंज रहता है उसमें we can expect the same range, right, for यस। FY26? Okay, okay. And how is the response on the H1 side, like जो अभी H1 FY26 और Q1 start हुआ है, because there were lot of like negative sentiments in terms of, let's say, disruption on trade war side, or even in terms of like जो consumption में थोड़ा बहुत slowdown हुआ है, और the seasonal rain अभी है जो मई में। So are we seeing any pressure, or abhi demand environment kaisa hai? Because we are majorly like operate in the western part of India, like Gujarat, Maharashtra. So यस। is there any challenges, or what is the situation at overall level? Yeah. नहीं, ऐसा अभी हमारा तो एक्चुअली मार्च फरवरी एंड से तो सीजन हमारा शुरू हो जाता है स्पाइसेस Mm-hmm. का। जैसे एंड यूजर जो है वो मसाले को खरीदने के लिए जब मार्केट में आते हैं तो मार्च या तो अप्रैल में आते हैं, तो उससे पहले हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है होलसेलर्स है वो हमसे प्रोक्योरमेंट शुरू कर देते हैं फरवरी एंड में। तो वहां पर हमें कोई ऐसा प्रेशर नहीं दिखा था कि ये कंसर्न की वजह से वो लोग Mm-hmm. थोड़ा कंजर्वेटिव लेके प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। वो जो नॉर्मली जो हर साल जो रहता है उसी हिसाब से उन्होंने प्रोक्योरमेंट किया है। और बेसिकली Okay. हमारा जितना भी सेल्स है वो पूरा डोमेस्टिक है, तो कोई एक्सपोर्ट को लेके कोई हमें कंसर्न तो रहता नहीं है। तो डोमेस्टिक में Okay. हमें कोई ऐसा ये इश्यूज की वजह से कोई प्रेशर नहीं दिखा है सेल्स में। इनफैक्ट इस साल तो Okay. थोड़ा Mm-hmm. साल भी अच्छा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपेयर में प्राइस भी स्टेबल है। तो लोग Okay. ये स्टेबल प्राइस पे काफी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स है वो स्टॉक भी कुछ कर रहे थे 2-3 महीने के लिए सीजन के लिए। तो वो Mm-hmm. एक पॉजिटिव साइन भी दिखा है हमें।
ओके सो जो रेवेन्यू गाइडेंस आपका है 30% फॉर दिस ईयर, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लाइक H1 में भी वी आर एक्सपेक्टिंग लेट्स से 29-30%, एंड ओवरऑल बेसिस पे वी विल आल्सो डू दैट, राइट? सो Yes, मतलब ऐसा yes. कोई सीजनल इफेक्ट नहीं रहेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। Next. ओके, थैंक यू फॉर द Thank, अपॉर्चुनिटी एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। thank you. Thank you, Vijay. We'll take the next question from the line of Akshat Jain. Akshat, you can unmute and go ahead, please. हाय। सो मेरा क्वेश्चन था कि हमारा जो स्टैंडअलोन में भी शोइंग लाइक 33% ग्रोथ, हाउ मच ऑफ दैट हैज बिन वॉल्यूम ग्रोथ एंड हाउ मच ऑफ दैट इज वैल्यू ग्रोथ, बेसिकली रियलाइजेशन? सी वॉल्यूम ग्रोथ हमारा ज्यादा हुआ है, बिकॉज कंपेयर टू लास्ट ईयर द जो प्राइजेस जो चिली, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है चिली पाउडर, तो चिली पाउडर में इस साल थोड़ा प्राइस कम रहा है 15 to 20%। तो अगर हम क्वांटिटी वाइज अगर इसको कंपेयर करेंगे तो काफी मतलब 10 से 12% का ग्रोथ ज्यादा दिखेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो गया था टर्मरिक और कोरिएंडर के क्यूमिन के साथ। तो टर्मरिक में जो प्राइस है वो ऑलरेडी डबल हो गए लास्ट ईयर की कंपेयर में। तो जो हमारा क्वांटिटी वाइज जो ग्रोथ है वो जो इस साल हमारा 33% जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, तो वो करीबन 36 या 37% आसपास जा रहा है वॉल्यूम वाइज ग्रोथ। ओके, सो वॉल्यूम ग्रोथ इज 36-35%। यस यस। ओके। एंड हम लोग की कमोडिटी प्राइसिंग जो आप बता रहे कि जैसे चिली का लास्ट ईयर आई थिंक आफ्टर Q2 ही ज्यादा कम हो गया था प्राइसिंग, हैज दैट रीबाउंडेड या क्या आउटलुक है हमारा? अभी जो सीजन में हमने अभी जो प्रोक्योरमेंट हमारा चल रहा था, तो जब हाँ। फर्स्ट क्रॉप आया था सीजन का, उस समय जो प्राइस था उससे तो अभी 10 से 15% का प्राइस हाइक हो गया है। क्योंकि जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था वो काफी क्वांटिटी बड़ी थी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की, क्योंकि लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट चिली का था वो बहुत कम हुआ था। बांग्लादेश में हम मेजोरिटी इंडिया से जाता है, तो वहां पर भी कुछ एक्सपोर्ट कम हुआ था, चाइना में भी कम हुआ था। तो उस वजह से कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बड़ा था। तो इसलिए जो नया क्रॉप आया उसका पहला जो क्रॉप था उसका, उसमें प्राइस प्रेशर दिख रहा था। लेकिन उसके बाद वो डोमेस्टिक मार्केट में ही इतना लिक्विडेट होने लगा कि जब सेकंड क्रॉप आया तो वो जो प्राइस जो नॉर्मल प्राइस पे मिल रहा था वो फिर मिलना बंद हो गया, और अच्छी क्वालिटी में तो एक 15% का हाइक भी आ गया। तो अभी हमें लग रहा है कि ये पूरे साल ये प्राइस जो है वो स्टेबल रहना चाहिए। इसमें कोई बड़ा जंप भी नहीं आएगा, और डाउन साइड तो जाने का कोई चांस ही नहीं है। ओके, तो फ्रॉम व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज कि लास्ट ईयर के जो सेकेंड हाफ में चिली की प्राइस थी उससे लगभग 10-15% ज्यादा इस साल में रहनी चाहिए। यस, लास्ट ईयर की जो हमारी प्रोक्योरमेंट थी उसके हिसाब से तो प्राइस सिमिलर रहेंगे, लेकिन इस साल की जो हमारी प्रोक्योरमेंट है उससे हम जो प्रोक्योरमेंट के बाद जो हमारा प्राइस हाइक हुआ है वहां पर हम 10 to 15% का हाइक देख रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। ओके, श्योर। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द ईयर हमारा जो होल स्पाइसेस का सेगमेंट है, which is whole chili, fenugreek and all, यस। that is exceeded our CTC or ground spices in the sales mix. So इसका क्या कारण है, and like how do we see the mix going forward also? कैटेगरीज हमने इसलिए बनाई कि क्योंकि कैटेगरी वाइज हमारा मार्जिन कैसे हमें मेंटेन करना है वो पता चले। और जो ग्राउंड स्पाइसेस है उसमें पूरा प्रोसेसिंग रहता है, ग्राइंडिंग का ये सब, और उसमें एसकेयूज भी काफी ज्यादा रहते हैं। तो ये एक कैटेगरी हमारी जो ग्राउंड स्पाइसेस है की है, और उस वो ग्राउंड स्पाइसेस की जो कैटेगरी है उसमें हमारा मार्जिन भी कुछ अलग रहता है। और होल स्पाइसेस है उसमें सिर्फ मेरे ये 500 ग्राम और 1 kg दो ही इसके यूज रहते हैं। और उसमें जो क्वांटिटी है कस्टमर की साइड से जो हमें ऑर्डर्स मिलते हैं उसकी जो क्वांटिटी ऑर्डर
क्वांटिटी वैल्यू जो होती है वो बड़ी होती है। जिस और ग्राम स्पाइसिस में SKUs ज्यादा होते हैं और उस वजह से उसकी जो ऑर्डर वैल्यू रहती है वो थोड़ी कम रहती है। तो ये एक कैटेगराइज करने के लिए हम दोनों को अलग ही कंसिडर करते हैं। ओके ओके, सो होल स्पाइसेस में आपने बताया 500 ग्राम से 1 kg तक की पैक्स है, तो हाँ, इसमें हम लोग होरेका को ज्यादा कीटर कर रहे हैं। मेजोरिटी होरेका से ज्यादा जो ये होलसेलर्स रहते हैं वो हमसे ज्यादा माल खरीदते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि 1 किलो 500 ग्राम के जो पैक्स है वो नॉर्मली 500 ग्राम का पैक जो है वो घर में भी काफी यूज में रहता है। पहले क्या होता था कि जो किराना वाले हैं वो खुद का लूज बल्क पैक 50 किलो या 25 किलो का लेके खुद अपने कस्टमर को सेल करते थे। लेकिन अभी कस्टमर अच्छी ब्रांड का प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। तो वहां पर जो ब्रांड की जो डिमांड आती है तो वहां पर हमें इजीली डायरेक्ट D2C कस्टमर्स मिल जाते हैं। तो मेजोरिटी वहां पर रहता है और बाकी जो होरेका बिजनेस है वहां पर भी सप्लाई तो रहती ही है। Okay, okay. And any thoughts on blended? Because industry wide normally margins blended में ही ज्यादा होते हैं, but हमारे अभी भी blended में अगर मैं देखूँ तो it's less than 10% in the sales share. नहीं, इतना भी नहीं है। ब्लेंडेड में हमारा अभी पहले हम जो 1% पे थे वो अभी कंसोलिडेट होके विटाग्रीन के आने से अभी हम 3.5% पे पहुंचे हैं। तो ये कुछ हमारा एक अचीवमेंट कह सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट 3.5 गुना कर पाए हमारा ब्लेंडेड स्पाइसेस का बिजनेस। लेकिन एक वैल्यू वाइज देखे तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं हो पा रही है। लेकिन इस कैटेगरी में हम काफी कुछ काम कर रहे हैं। एक मार्केटिंग इनिशिएटिव और प्रोडक्ट में भी काफी सारे न्यू प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग में भी काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स लाके इसको और कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। Okay, okay. ठीक है, thank you. थैंक यू। Thank you, Akshat. We'll take the next question from Darshil Zaveri. Darshil, you can unmute and go ahead. Hello, hello. Good afternoon, sir. Hopefully, I'm audible. यस, गुड आफ्टरनून दर्शी जी। Yeah. Hi, sir. So, sir, just wanted to know that we are saying around 30% growth plus, and but I think just wanted to ask, like last year our volume growth was even higher than 30%, and this year commodity prices are also looking maybe more supportive. So, can we even go higher than this? Like if the push from higher realizations come in? That's my first question, sir. हेलो। आपकी बात सही है। हाँ। हम हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ है वो ज्यादा हुआ है एक्चुअल से। तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30% से हम बढ़ जाए। लेकिन एक कंजर्वेटिव फिगर देना मैं पर्सनली ऐसा प्रीफर करता हूँ कि जो अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ कि प्राइस बीच में कोई हाइक आया या तो डाउन गया कोई, जैसे हमारे पास इतनी कैटेगरी है मसालों की, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट में अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो एक कंजर्वेटिव फिगर देके चल चल रहे होते हैं। तो ये उससे अच्छा हम देंगे तो इन्वेस्टर को भी अच्छा लगेगा। तो इसी वजह से हम 30% का एक कंजर्वेटिव फिगर लेके चलते हैं कि किसी भी हाल में इससे नीचे तो हमारा ग्रोथ जाएगा ही नहीं, आएगा तो इससे ऊपर ही आएगा। That's great to hear, sir. I think it's a very good thing that we are being conservative. And secondly, sir, on the margin front, like I just wanted to know कि last 2 years our margins have been stable around 10%, but like अपना last मतलब H1 में 11% आ गया था, अभी 10% है. So अभी higher growth के साथ should the margins improve a bit more because like तो वो मेरे को एक क्वेश्चन था कि मार्जिन शुड इम्प्रूव मोर बिकॉज 10% मतलब अपना H2 में ग्रॉस मार्जिन भी थोड़ा कम हुआ था, तो मेरे को सिर्फ उसका रीजनिंग जानना है कि अपना मार्जिन मूवमेंट क्या हो रहा है, बिकॉज थोड़ा ग्रॉस बेसिस पे कम हुआ इसके लिए बिटा पे कम आ रहा है, या फिर हाउ इज इट गोइंग, कैन वी एक्सपेक्ट हायर मार्जिन बिकॉज अपने को लेवरेज बहुत मिल जाएगा 30% ग्रोथ के साथ, तो अपना फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है. सो हाउ डू वी सी द ट्रेंड ऑफ ग्रॉस मार्जिन इन एबिटा मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड, सर?
यस यस, एबिटा मार्जिन एक्चुअली जो है वो 10.8% का आ रहा है। तो कुछ लास्ट ईयर की कंपेयर में 0.1% डाउन हुआ है। लेकिन वो हमने काफी इसमें मैनेज किया, क्योंकि लास्ट ईयर का जो हमारा कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था चिली का, वो थोड़ा हायर प्राइस का था। लेकिन हम 70% स्टॉक रखने का हमारा रीजन यही रहता है कि अगर इन फ्यूचर प्राइस डाउन होता है तो हम उसको लिवरेज कर पाए एवरेज करके। तो H2 में जब हमारा कैरी फॉरवर्ड स्टॉक ऑलमोस्ट 10% के आसपास ही रहा था, तो हमारा जो नया प्रोक्योरमेंट है वो शुरू हो गया था जनवरी एंड में, जनवरी फरवरी से। तो ये कैरी फॉरवर्ड स्टॉक और नए स्टॉक को जब हमने एवरेज किया, तो वहां से हमें जो मार्जिन है वो हम मेंटेन करने में कुछ काफी कामयाब रहे थे। तो ये जो 11% है वो तो मेंटेन रहेगा अगले साल के लिए भी, ये तो डेम श्योर है। ओके ओके सर। एंड सर जस्ट वांटेड टू नो कि अपना एक एक्सेप्शनल आइटम आया था ये क्वार्टर के अंदर, ये हाफ के अंदर, तो व्हाट वाज दैट सर? 3.1 करोड़ का आई थिंक। सॉरी, मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। अपना नोट्स टू अकाउंट्स लाइक अपना वी हैव एन एक्सेप्शनल आइटम अराउंड 3.1 करोड़ आई थिंक, सो जस्ट वांटेड टू नो कि व्हाट इज दैट सर? जस्ट 1 मिनट, और CFO विल। आपके पास कुछ डिटेल होगी क्या आप? आपके सर कंसोलिडेटेड नोट टू अकाउंट्स में है ना, आफ्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर एक्सेप्शनल आइटम है लाइन नंबर 4 ऑफ 307 lakhs। आपके जो अकाउंट स्टेट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है ना, तो उसके अंदर पूछना था ये, मतलब ये क्या वन ऑफ कुछ क्या है? ओके, कंसोलिडेट में ना, हाँ, वो तो जो हमारा हमने जो विटाग्रीन एक्वायर किया था, तो हमने वहाँ विटाग्रीन का जो फिक्स एसेट्स है, जैसे उसका प्लांट हमने एक्वायर किया था, लेकिन उसके जो लैंड बिल्डिंग्स है वो हमने एक्वायर नहीं किए हैं। तो वो जो हमारे पहले के जो प्रमोटर थे, उन्होंने ये कंपनी के नाम से वहाँ की लैंड ले रखी थी। तो ये जो लैंड थी विटाग्रीन के नाम से, तो विटाग्रीन से वो सेल डीड बन के प्रमोटर के दूसरी कंपनी के नाम पे उसको ट्रांसफर किया था। तो ये जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वजह से ये जो 3 करोड़ दिख रहा है वो उसका है। ओके ओके, मतलब बेसिकली ये रिकरिंग नहीं रहेगा अपना, बिकॉज ओके ये नहीं वन नहीं, ऑफ ये आइटम है, रिकरिंग ये नहीं वही रहेगा, ये पूछना तो था। हाँ। वन टाइम हुआ। ओके ओके, सो सर जस्ट लाइक तो जस्ट वांटेड टू आस्क लाइक अपना H1 में प्रॉफिट मार्जिन विदाउट द एक्सेप्शनल आइटम वाज आल्सो 6.5%, बट H2 में एक्सेप्शनल आइटम के साथ 6.5% है। तो सिर्फ जस्ट वांटेड टू रिकंसाइल दैट ओनली कि अपना आगे जाके, बिकॉज अपन इतना ग्रोथ कर रहे हैं, तो जस्ट वांटेड टू नो कि अपना हायर मार्जिन ट्रेजेक्टरी नॉट मे बी FY26 but 27 28, what is our plan like अपना branded, what is the margin that we get, and what are we expecting going forward, like maybe not this year, next year अपना what is our target, like even EBITDA PAT whatever you're comfortable with? जी, और हमने जो एबिटा के लिए जो हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं, वो 11% का, हमारा जो 11.5% का जो टारगेट है वो उसी को लेके चल रहे हैं। क्योंकि जो हमारे जो कैटेगरी वाइज मार्जिन्स है, ब्राउन स्पाइसेस में हम 15% का मार्जिन हमारा रहता है, ब्लेंडेड में हमारा 25 रहता है, और जो होल स्पाइसेस कैटेगरी है उसमें करीबन 8 से 10% के बीच रहता है प्रोडक्ट वाइज। और जो हमारी ग्रोसरी प्रोडक्ट्स है उसमें भी 12 to 15% के बीच का मार्जिन रहता है। तो ये जो कैटेगरी वाइज हमारा मार्जिन ब्रेकअप है, और जो हम अभी ट्रेडिंग बिजनेस हमारा जो 40% के आसपास जा रहा है, वो भी अगले साल हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि उसको हम 30 से 35% के बीच में ही तक मेंटेन कर पाए। तो इससे हमारा जो ट्रेडिंग बिजनेस में हम सिर्फ 4% का मार्जिन हमारा रहता है, तो वहाँ भी हमारा जो हायर मार्जिन वाली प्रोडक्ट है उसका सेल
बढ़ेगा। तो अगर हम नए एरियाज में कुछ हमारा एक्सपेंस भी बढ़ता है तो उसके सामने मेरा जो हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स है उसका सेल जो है वो भी बढ़ेगा। तो मार्जिन एबिटा मार्जिन जो है वो हमारा जो हम एक प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं उसको मेंटेन आराम से कर पाएंगे। Okay, okay. So just last question from my end, sir. I think H1 we were usually saying will be 1/3 and H2 2/3. So now going forward, I think we had such a good growth in H1. So will it like reduce a bit, like it will be 40, 60, or how do we see like H1? How do we see कि कितना percent रहेगा of our total revenue right now? इसमें क्या है कि जब तक हम हमारा जो एग्जिस्टिंग हमारा जो मार्केट एरिया था उसमें काम कर रहे थे उस समय हम एक 100% अंदाजा लेके चल सकते थे कि भाई हमारा जो इतने सालों से हम जहाँ पर प्रेजेंस हमारी है जो गुजरात और सौराष्ट्र रीजन में, तो वहाँ पर हमारा एक अंदाजा था कि नहीं हम फर्स्ट हाफ में हमारा 1/3 और सेकंड में 2/3 रहता है। लेकिन अभी हम गुजरात से बाहर मार्केट में प्रेजेंट हुए हैं तो वहां पर हम इतना हमें अंदाजा नहीं आ रहा है कि यहाँ भी सेम सिचुएशन रहेगी। तो मे भी हो सकता है कि हमारा H1 H2 40-60 भी हो या तो 35-65 भी हो या तो हो सकता है कि 45-55 भी हो जाए, क्योंकि अभी नए एरियाज में ये सीजनल जो ट्रेंड है वो चलता है कि नहीं वहाँ हम जब अच्छा हमारा एक डेवलप हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक्सपेक्टेड ऐसा है कि हम इस साल 40-60 के आसपास H1 H2 में रहेगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Okay, that's great to hear, sir. All the best, sir. Thank you. थैंक यू। Thank you, Darshil. We'll take the next question from the line of Tanesha. Tane, you can unmute and go ahead, please. Hi, thanks. Am I audible? यस। Thank you, Rishit ji. I think मेरे मेरे दो questions हैं. First, इंडस्ट्री एट बेस्ट सिंगल डिजिट पे ग्रो कर रही है और हमने पास्ट में तो ग्रो किया है 33% जो आप कह रहे हैं. तो आई गेस व्हाट मेक्स अस कॉन्फिडेंट और गिव्स अस द राइट टू विन कि नेक्स्ट 3 to 5 years जो आपने गाइडेंस दिया है 33% ग्रोथ होगा, वो क्यों होगा? यस यस, काफी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसी के ऊपर हमारा हमारा टीम के साथ डिस्कशन रहता है। इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है हमारा जो एग्जिस्टिंग मार्केट में वहां से हम 10 से 12% का ही ग्रोथ ले पाते हैं, क्योंकि जो अनब्रांडेड जो मसाले के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि सिर्फ सीजन में ही सेल करते हैं, फिर सीजन के बाद वो मार्केट से दिखते नहीं है, फिर अगले साल और कोई आता है और फिर चला जाता है। तो ये जो एक ट्रेंड इतने सालों से मसाले की इंडस्ट्री में चल रहा था वो भी काफी चेंज हो रहा है। कस्टमर जो एंड यूजर है वो ब्रांडेड मसालों को लेकर ही मतलब घर में यूज करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा लेबर क्लास का पब्लिक हो तो भी वो चाहे उसके लिए 5 रुपए का पैकेट लेना हो तो भी वो लूज नहीं खरीदेगा, वो पैकेट को ही प्रेफरेंस देगा कि नहीं मुझे कोई भी ब्रांड का पैकेट ही चाहिए, आपका लूज नहीं चाहिए। तो ये एक जो कन्वर्जन हो रहा है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का, उसका एक बेनिफिट हमें मिल रहा है। और दूसरा जो है वो इंडस्ट्री भले ग्रो नहीं कर रही है लेकिन हमारा जो प्रेजेंस है वो एक गुजरात में हमारा एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इवन सौराष्ट्र में हम 35% का हमारा मार्केट शेयर है। तो वहां से हमें जो ग्रोथ मिलेगी वो एक ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का जो कन्वर्जन है उसका 10-12% का ही ग्रोथ मिलेगा। लेकिन मेजोरिटी जो ग्रोथ मिलेगी वो हम जहाँ पर कहीं प्रेजेंस नहीं है और हमारा नया नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं वहीं से हमें ग्रोथ मिलेगी। तो उसी हिसाब से हम 30% का एक प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं। थैंक यू. तो उसके हिसाब से तो मतलब आगे जाके हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी देख सकते हैं अलग ज्योग्राफीज में, कि हमारी जो ब्रांड्स है उन्हीं को हम सॉर्ट ऑफ और प्रेजेंस करवाएंगे वो एरियाज में, कि वी कैन लुक एट इनऑर्गेनिक ग्रोथ आल्सो. ये ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो एक फिक्स रहती है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ में हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, नई टीम बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को
अपॉइंट करके फिर वहाँ के हिसाब से जो उसको रिक्वायरमेंट है उसी उसी रिक्वायरमेंट का हम मटेरियल सप्लाई दे पाए हर लोट में। तो ये एक कंसर्न्स रहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए तो हम इतने सालों के एक्सपीरियंस से हमें पता होता है कि कौन से एरिया में कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा। तो वो तो इजीली मेंटेन हम कर पाते हैं। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में नए मार्केट में हमें कंपटीशन का भी एक कंसर्न रहता है कि हम जो नए एरिया में जाते हैं तो कंपटीशन भी हमें कॉम्पीट करेंगे। तो वहां पर हम कुछ ना कुछ स्कीम्स रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए लाते हैं और कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज करके फिर उसको टेकल करते हैं। ओके। एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि हमारी इन्वेंट्री लेवल्स काफी हाई है, क्या कारण हो सकता है उसका? इन्वेंट्री लेवल्स हम अगले साल का जो हमारा सेल्स टारगेट जो रहता है उस हिसाब से हम ये सीजन में उसका प्रोक्योरमेंट करते रहते हैं। क्योंकि जो सीजन रहती है वो जनरली फिर जनवरी से मार्च के बीच में रहती है। तो हमारा अगले साल का अगर टारगेट कुछ चल रहा है तो उसी हिसाब से हम ये करंट ईयर में उसको प्रोक्योर करके रख देते हैं। ऑलमोस्ट 70% तक का हमारा प्रोक्योरमेंट सीजन में ही हो जाता है। तो अगले साल अभी हम टारगेट लेके चल रहे हैं, तो वो टारगेट को मैच करने के लिए और अभी इस साल थोड़ा क्वालिटी और जो प्राइस का जो स्टेबिलिटी हमें दिख रहा है तो उस हिसाब से हमने इस साल थोड़ा प्रोक्योरमेंट ज्यादा किया है। तो फिर उसके हिसाब से अगर हमारी टारगेट और एस्पिरेशन है 30-33% ग्रोथ नेक्स्ट 3 to 5 years, और अगर हाँ, यही प्रोक्योरमेंट सीजन है, तो हम एक्सपेक्ट करें कि इन्वेंट्री लेवल्स ये सेम होंगी कि ये बढ़ती रहेंगी, अज्यूमिंग कि अगर हमें और सेल करना है, वेदर दैट्स वॉल्यूम और थ्रू वो तो रियलाइजेशन, हाँ, वो तो प्रोक्योरमेंट। obviously, हाँ वो तो प्रोक्योरमेंट जो मतलब हमारा जो स्टॉक लेवल है वो तो अगले साल के लिए बढ़ने ही वाला है। क्योंकि ये हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि अगर मैं मेरे पास पूरे साल के लिए अगर 50% का स्टॉक नहीं है तो मैं मार्केट में मेरे माल बेचने के लिए स्टैंड ही नहीं कर पाऊंगा। हम्म। ओके। तो रफली कोई आइडिया है, मतलब क्या क्या लेवल या क्या परसेंटेज से अप्रोक्सीमेटली इन्वेंट्री लेवल्स भी इंक्रीज होंगी इन अकॉर्डेंस टू आवर सेल्स टारगेट्स? ऑन एन एवरेज हमारा जो सेल्स रहता है उसका 30 से 35% थ्रू आउट द ईयर मेरा स्टॉक लेवल मेंटेन हम रखते हैं ओके। कि इतना तो स्टॉक हमारे पास होना ही चाहिए। ओके, ग्रेट, थैंक यू ऋषि जी। Thank you, Mr. Tanay. We'll take the next question from Vaibhav Kapoor. Vaibhav, you can unmute and go ahead, please. या गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून वैभव जी। अच्छा, सर मुझे ये पूछना था कि वो बीटा ग्रीन की एक्विजिशन के लिए आपने कितना अमाउंट दिया था, और ये जो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, इसका थोड़ा आप उसको लिंक करके थोड़ा एक क्लियर कर दे। वो पूरा क्लियर नहीं हुआ सर। जी, वैभव जी, ये हमने विटाग्रीन को 7.75 CR में 100% एक्वायर किया था। उसकी ओके। जो कंपनी है उस प्रमोटर है उनसे हमने 100% इक्विटी मधुसूदन मसाला ने टेक ओवर कर ली थी। तो आज मधुसूदन मसाला 100% स्टेक होल्डर है विटाग्रीन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के। और जो ये जो 3 करोड़ का जो एक्सेप्शनल आइटम दिख रहा है वो एक्चुअली विटाग्रीन की जो बैलेंस शीट थी जब हमने एक्वायर की उस समय उसमें लैंड बिल्डिंग का जो पोर्शन था वो हमने लैंड बिल्डिंग को प्रोक्योर नहीं किया था, सिर्फ उसके प्लांट मशीनरीज और उसकी ब्रांड इसको ही हमने वैल्यूएशन में कंसीडर किया था। तो वो प्रमोटर को ये कंपनी से उसकी जो प्रमोटर के नाम पे हमने ये सेल डीड बना के उसको सेल किया, तो उसकी वजह से ये दिख रहा है इसमें। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन भी वो वीटा ग्रीन के बारे में ही है। अगर आप अपना बैलेंस शीट को जब कंसोलिडेट कर रहे हो, तो आपका इन्वेंट्री वीटा ग्रीन में 10 करोड़ का और
11 करोड़ का अकाउंट रिसीवेबल दिख रहा है, बट आपका टर्नओवर खाली 15 करोड़ ऐड हो रहा है। तो ये सर मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि वर्किंग कैपिटल इतना ज्यादा है बट टर्नओवर नहीं है, तो ये कुछ आप इसके बारे में समझा सकें। जो विटाग्रीन है ना, उसमें क्या है कि हमारे बिल्कुल छोटे एसकेयूज का सेल ज्यादा है। वहां पर आप मैं नंबर ऑफ पैकेट्स की बात करूँ तो जो विटाग्रीन में हम लोग ऑलमोस्ट साल के 3 करोड़ पैकेट्स का सेल करते हैं, जो कि काफी बड़ी अमाउंट रहती है। तो वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ज्यादा है, मेरे 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स सिर्फ विटाग्रीन के हैं। तो उसमें थोड़ा मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम क्रेडिट देते हैं, तो ये क्रेडिट पीरियड 45 डेज रहता है, तो उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रहता है। और स्टॉक का लेवल जो है वो वहाँ पर भी हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक ये समझो कि पूरे साल के लिए हम जो अगले साल के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस हिसाब से स्टॉक भी मेरा मेंटेन रखना जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं। नहीं सर, टोटली क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप देखो तो वीटा ग्रीन को आप कंसोलिडेट करते हो तो 15 करोड़ का टर्नओवर दिख रहा है वीटा ग्रीन से। और नहीं, 22.5 करोड़ का है। हाँ चलो, ठीक है, आई जस्ट रीचेक द नंबर, बट 22.5 करोड़ है। बट साइज 22.5 करोड़ पे आपका 11 करोड़ का अकाउंट्स रिसीवेबल ऐड हो रहा है, और आप बोल रहे हो 45 डेज आप डिस्ट्रीब्यूटर को क्रेडिट दे रहे हो, तो ये थोड़ा नहीं मुझे नहीं नहीं, क्लियर नहीं हुआ। साढ़े साढ़े 11 का नहीं है कुछ आप 11 करोड़ है सर, 88 करोड़ का आपका इन्वेंट्री है स्टैंडर्ड लोन में, और कंसोलिडेट में 98 हो रहा है, और आपका अकाउंट्स रिसीवेबल 36 करोड़ है जो 47 करोड़ हो रहा है सर। जस्ट क्रिएट बीटा ग्रीन में। और सो आप वो 22.5 करोड़ बता रहे हो रेवेन्यू, बट आपका सेल्स स्टैंडर्ड लोन में 216 करोड़ है, जो कंसोलिडेट में 231 दिखा रहा है। शायद मेरे को रीचेक करना पड़ेगा, बट मेरे को 15 करोड़ दिख रहा है कहीं। यस, हाँ, बीटा ग्रीन में आप जो रिसीवेबल्स बता रहे हो 11 करोड़ का है, और मधुसूदन में 36 करोड़ का है। हाँ, बीटा ग्रीन में क्या हुआ था कि हमने कुछ रॉ मटेरियल जो हमने जब एक्वायर की थी, तो उस समय कुछ रॉ मटेरियल ऐसा था कि जो हमें यूज में नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि थोड़ा क्वालिटी की कंसर्न की वजह से। तो उसको हमने बल्क सेल कुछ किया था 4.5 करोड़ का, तो उसका पेमेंट मेरा लेना बाकी था विटालिंक्स में। तो वो एक बड़ी अमाउंट का रिसीवेबल दिख रहा है उसका। अच्छा सर, वो क्लियर कर देता है ये अकाउंट्स रिसीवेबल का पॉइंट। और सर इन्वेंट्री भी 88 करोड़ से में 10 करोड़ का मतलब ज्यादा है, बट आपका टर्नओवर उस रेशियो में नहीं है। तो ऐसा है कि आप वहां भी ले रहे हो, और आप मतलब ये आप समझा दे सर मतलब। वो तो कैटेगरी वाइज हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ग्राउंड स्पाइसिस और ये जो हमारे वर्ल्ड स्पाइसिस का पूरा जो प्रोक्योरमेंट है वो मधुसूदन से होता है। और जो ओके। ब्लेंडेड स्पाइसिस के लिए जो मेरा प्रोक्योरमेंट जो रहता है वो विटाग्रीन से होता है, क्योंकि उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सब विटाग्रीन से होता है। तो वो मतलब पूरा अच्छा एंटिटी अच्छा दोनों अच्छा अलग अच्छा, ही है, समझ सिर्फ गए। मधुसूदन तो हमारा एक स्टेक होल्डर है, लेकिन पूरे दोनों अलग ही एंटिटी है। हाँ हाँ सर, ये अभी क्लियर कर देता है ये पॉइंट को। अ, ठीक है। एंड सर आप ये इन्वेंट्री का, अभी प्रीवियस पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि इन्वेंट्री काफी बढ़ गया है, तो आप जो आप 30% टारगेट बता रहे हो, उस बेसिस पे आपने ये इन्वेंट्री का लिया है, या आपका टारगेट का प्रोजेक्शन उससे ज्यादा है, ये जो नहीं, इन्वेंट्री है? इसमें हाँ, जनरली क्या होता है कि हम मार्केट का फोरकास्ट देख के हमारा इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। अगर अगले साल में पूरे साल अगर स्टेबल दिख रहा है मार्केट हमें, तो हम कंजर्वेटिव स्टॉक लेके चलते हैं। अगर हमें लगता है कि मार्केट कुछ ऊपर जाने वाला है, तो थोड़ा स्टॉक
तो हमारा ज्यादा हम कर लेते हैं। तो अगले साल जब हमें लग रहा था कि ऑलरेडी रॉ मटेरियल के प्राइस ही हाई है, FY23 में जब हमने FY24 के लिए प्रोजेक्शन लेके चल रहे, तो उस समय हमारा स्टॉक लेवल एकदम मिनिमम लेवल पे था। लेकिन इस साल हमारा जो फोरकास्ट आ रहा है ऐसा है कि अभी मार्केट में जो थ्रू आउट द ईयर प्राइस जो है वो स्टेबल रहने की उम्मीद दिख रही है, या तो थोड़ा बहुत हायर साइड रहेगा। तो इस साल हमने स्टॉक एक ऑप्टिमम लेवल पे रखा है, मतलब एक अच्छे खासे लेवल पे रखा है। तो अब अभी थ्रू आउट द ईयर हमारा जो प्रोक्योरमेंट है वो मिनिमम रहेगा, स्टॉक से ही ज्यादा हमारा प्रोसेसिंग रहेगा। तो ये एक नहीं, हमारा रूटीन हाँ, प्रोसेस रहता है अभी इतने सालों से जो हम राइट राइट। मार्केट प्रोजेक्ट फोरकास्ट करके चलते हैं, तो उसके बेस पे हम हमारा स्टॉक का लेवल लेके चलते हैं। नहीं, ये सवाल मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से, आपने बोला आप 70% प्रोक्योरमेंट कर लेते हो हाँ। बिफोर द इन द सीजन टाइम। इस टाइम आपने वो 70% से ज्यादा किया है या कम, बस इतना मेरे को से थोड़ा आइडिया जाए। नहीं, ये कैटेगरी वाइज रहता है, टोटल अच्छा रेवेन्यू के साथ नहीं होता है। जैसे मेरा ग्राउंड स्पाइसिस है तो उसमें हम 70% करते हैं, लेकिन अदर प्रोडक्ट्स जो है हमारी उसमें स्टॉक मेरा जब जरूरत पड़ती है उसी हिसाब से मिनिमम 1 महीने का स्टॉक रहता है। अच्छा, आप खाली ग्राउंड स्पाइसेस में 70% प्रोक्योर करते यस हो? यस यस। ऑल राइट सर, दैट क्लियर्स ऑल माय क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, Vaibhav. I request a participant to limit the questions to two since there is a time constraint. Resha Mehta, you can unmute and go ahead, please. या थैंक यू। तो पहला ये था कि बेसिकली हमारा कितना रेवेन्यूज आता है गुजरात से और कितना महाराष्ट्र से आता है। और जब भी हम न्यू मार्केट में जाते हैं तो बेसिकली जो अल्टीमेटली जो रिटेलर है वो क्यों हमारा प्रोडक्ट स्टॉक करेगा, मतलब हम कितना उसको एडिशनल मिस रेशा, आपका जो वॉइस है वो कितना क्रेडिट पीरियड देते वर्सेस द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। hello, Miss Resha, we were not able to hear in between. Can you please repeat your question? Yeah, is this better? Yeah, this is better. Are you able to hear me? Yeah. Okay. तो मेरा पहला सवाल था कि हमारा कितना परसेंट रेवेन्यूज गुजरात एंड महाराष्ट्र से आता है, एंड जब भी हम कोई न्यू मार्केट में जाते हैं तो रिटेलर क्यों अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट्स शेल्फ स्पेस क्यों देगा हमें, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल है। तो हम कितना एडिशनल मार्जिन्स देते हैं चैनल को वर्सेस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, एंड क्या क्रेडिट टर्म्स होते हैं वर्सेस द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। जी 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 जरूर। आपका जो पहला क्वेश्चन है गुजरात और महाराष्ट्र में, तो हम गुजरात में मेरा 70% जो सेल है वो गुजरात से रहता है। अब 15% मेरा महाराष्ट्र से रहा है ये पूरे साल के लिए। और जो 15% है वो जो हमने नए जितने भी स्टेट ओपन किए हैं वहाँ से हमारा सेल आया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा स्टेट वाइज सेल्स रहा है। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि नए रीजन में हम जब एंटर करते हैं तो वहाँ से वहाँ रिटेलर हमें क्यों एंट्री करने देंगे। तो उसके लिए हम जो मार्जिन्स की आप बता रहे हैं वो हमारा पहला एक रूल रहता है कि एक हेल्दी मार्जिन प्रोवाइड करके हम उसको कन्विंस कर पाए। और दूसरा रहता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो अपॉइंटमेंट हम करते हैं तो वो एक उसका प्रोसेस एक हमारा अलग बाकी कंपनियों से अलग रहता है। हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो सिर्फ मसालों का ही काम करता हो, ना कि पूरे एफएमसीजी की प्रोडक्ट लेके बैठा हो। वो सिर्फ मसालों के बारे में जानता हो, मसालों को लेके वो खुद भी इतना नॉलेजेबल हो कि भाई अगर वो रिटेलर के पास जाए तो रिटेलर उसका मान रख के भी प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो पहली हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को ही अपॉइंट करें जो ये मसालों की इंडस्ट्री के साथ अच्छे से जुड़ा हुआ हो, काफी सालों से वो मार्केट में बैठा हुआ हो।
तो वहाँ हमारा थोड़ा काम आसान हो जाता है रिटेलर को कन्विंस करने के लिए। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर जब मसाले के लिए इतना जानकार होता है तो वो हमें गाइड करता है कि उसके जो रीजन में कैसे क्वालिटी के कैसी ब्लेंड के उसको मसाले चाहिए। तो उस हिसाब से हम उसको एक पर्टिकुलर रीजन के लिए उसको एक ब्लेंड बना के हम रेडी करके देते हैं। तो उससे उसको काम करने में भी मजा आता है और रिटेलर को भी वो एक भरोसे से माल दे पाएगा कि भाई ये जो मसाले है वो आपको एक अच्छे मार्जिन पे भी मिलेगा, और दूसरा कि आपको ये जो आपके जो एंड यूजर है उसको भी आप एक अच्छी क्वालिटी के मसाले बेच पाओगे। तो ये 3-4 ऐसी हमारी एक टूल्स है जिससे हम नए मार्केट में एंट्री करने में हमें कुछ कन्वीनियंसी रहती है। तो ये कुछ हमारी सेल स्ट्रेटेजी ऐसे रहती है। सॉरी, मैंने मार्जिन हाँ मिस किए। आप हाँ, कितना, मार्जिन में बताऊँ तो और क्रेडिट जैसे पीरियड दोनों भी हाँ, आप कितना देते हो और इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड है? जरूर जरूर। मार्जिन्स जो है रेशा जी, ये कैटेगरी वाइज रहते हैं। फिर भी आपको मेरी जो मेन कैटेगरी है ग्राउंड स्पाइसेस और होल स्पाइसेस की, तो उसमें आपको बताऊँ तो आइडियली जो 22% का रिटेलर मार्जिन रहता है और 9% जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन रहते हैं। और हम इसको जो रिटेलर मार्जिन है इसको हम 30% के मार्जिन पे देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन सेम रहता है हमारा भी 9% का। और जो ब्लेंडेड स्पाइसेस है उसमें मार्जिन ज़्यादा रहते हैं, 35 से लेके 40% के बीच के इंडस्ट्री मार्जिन रहते हैं। और हमारा भी सिमिलर 35 से लेके 45% तक के बीच का है जो रिटेलर मार्जिन है। और डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन है वो सब कैटेगरी के लिए कॉमन रहता है 9% का। और जो क्रेडिट पीरियड है वो आइडियली कोई बड़ी ब्रांड है तो वो तो एडवांस पेमेंट पे ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो रिटेलर को 7 या 15 डेज का क्रेडिट देते होते हैं। और हम जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको 45 डेज का क्रेडिट पीरियड ऑफर करते हैं, और सामने डिस्ट्रीब्यूटर भी उसके रिटेलर को ये इतना क्रेडिट पीरियड ऑफर करते हैं। तो हम हमारी प्रोडक्ट को प्लेसमेंट करने के लिए ये भी एक अच्छी बात रहती है डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के लिए कि उसको एक क्रेडिट पीरियड भी मिल रहा है और मार्जिन भी अच्छे खासे मिल रहे हैं कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। तो ये दो चीज हमें कुछ मदद करती है मार्केट, नए मार्केट में। गॉट इट। एंड और एक क्वेश्चन था बेसिकली। हेलो। हाँ, यस यस, गो अहेड। यस। सो हमारा जो गुजरात में और महाराष्ट्र में हमारा जो टॉप 2 स्पाइसेस में कौन से प्लेयर्स होंगे? एंड सेकंड क्वेश्चन वाज कि अगर एक बार आप जस्ट मार्जिन्स बता सको आपके ब्रांडेड का, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का, ग्राउंड स्पाइसेस, होल स्पाइसेस, ब्लेंडेड स्पाइसेस, और जो भी आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज अगले लिस्टेड है अगले क्वेश्चन स्लाइड में नंबर। ऑलरेडी, हाँ, अगले क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी बताए थे मार्जिन्स कैटेगरी वाइज। ओके ओके। इफ यू कुड जस्ट रिपीट तो बहुत अच्छा रहेगा। सी ग्राउंड स्पाइसेस में मेरा 15% के आसपास मार्जिन रहते हैं, और ब्लेंडेड स्पाइसेस में 25% रहते हैं। और जो होल स्पाइसेस कैटेगरी है उसमें 8 to 10% रहता है। और जो ये हमारे ग्रोसरी प्रोडक्ट्स है उसमें 12 to 15% के बीच में रहता है। एंड ब्रांडेड ओवरऑल ब्लेंडेड? सॉरी। ब्रांडेड ब्रांडेड जो आपने ब्रांडेड हाँ, और ये ब्रांडेड नहीं, ये ब्रांडेड। ब्रांडेड का ही मैंने बताया ना। नॉन ब्रांडेड में मेरा ओके, 4% का रहता है मार्जिन। राइट। एंड गुजरात और महाराष्ट्र में कौन से टॉप 2 ब्रांड्स है? गुजरात में जैसे ग्राउंड स्पाइस ये रामदेव है, फिर हाथी मसाला है। और सौराष्ट्र की बात करूँ तो यहाँ पर अदानी मसाला भी काफी अच्छा प्लेयर है, जो हमारे हम मेन उसको कंपटीशन में गिनते हैं, हाथी और अदानी को। और महाराष्ट्र में हमारे जो कंपटीशन है वहाँ पर सुहाना जो ब्रांड है उसका कुछ कंपटीशन रहता है। फिर इसके अलावा आची मसाला जो है उसका भी कुछ कंपटीशन हमारी रहती है। तो ये 2 ब्रांड
आप टॉप ब्रांड में गिन सकते हैं। बाकी ब्लेंडेड स्पाइसेस के लिए तो पेन इंडिया जो एमडीएच एवरेस्ट है वो लीडर है, लेकिन हम मेन कंपटीशन हम ग्राउंड स्पाइसेस की जो कंपनी है उसी को ही हम कंसीडर करते हैं। अंडरस्टूड, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, Resha. We'll take the next question from Ronil Dalal. Ronil, you can unmute and go ahead, please. Yeah, hi. Am I audible? यस 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 अनिल जी। Yeah, hi ऋषि जी, कैसे हो? हाय, बस Um, बढ़िया, आप कैसे हो अनिल जी? बस बढ़िया। हाँ So my first question is, ये आपने पहले कहा था कि 30% ग्रोथ रहेगी रेवेन्यू की, लेकिन उसमें आपने बोला कि सौराष्ट्र गुजरात आपकी बड़ी मार्केट है, 70% मार्केट है, और उसमें ग्रोथ रहेगा 10 to 12%। तो अगर 70% रेवेन्यू 10 to 12% से ग्रो करेगा, तो बाकी 30% का बिजनेस जो है वो 80% ग्रो करना पड़ेगा उसको। तो 80% ग्रोथ आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा मुमकिन है फॉर FY 26? नहीं, ये 70% जो है वो अगले साल के लिए रहा है। अभी FY 26 में ये 70% तो रहने वाला नहीं है, ये तो कम होगा ना गुजरात। जब मेरा अदर स्टेट में अभी जो हम डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए हैं हमने, जैसे 20 नए डिस्ट्रीब्यूटर हमारे ऐड हुए हैं, फिर 3,000 रिटेलर्स ऐड हुए हैं। तो ये जो बेनिफिट मिलेगा वो जो नए स्टेट हमने कवर किए वहीं से ही मिलने वाला है। FY 26 में भी 70% रहेगा गुजरात का, वो तो नहीं रहेगा ना, ये अभी 70 से कम हो जाएगा। जी, तो कितना कम होगा? मतलब अगर FY 26 पकड़े तो कितना कम हो सकता तो है? समझो डेफिनेटली 50%। ये एग्जैक्टली तो जब साल खत्म होगा तभी पता चलेगा। अभी तो अप्रोक्सीमेटली, मतलब जो आपने 30% सोचा है, तो उसमें आपने कुछ तो गणित किया होगा कि कुछ अजम्पशन तो लिया होगा कि गुजरात से इतना कंट्रीब्यूशन आ सकता है। तो समझो हम तो 50% अभी अगर हम समझे, हाँ तो अगर समझो 50 भी अगर हम पकड़े, अ, तो गुजरात का 12% का ग्रोथ के हिसाब से 30 में से और फिर 24% आएगा बाकी के बिजनेस से, तो लगभग 48% ग्रोथ रहेगा बाकी के बिजनेस में। तो ऐसा ऐसे नहीं है कि गुजरात से 12% जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो क्या है कि विदाउट एनी एफर्ट्स हमें इतना ग्रोथ तो मिलने ही वाला है। अगर कुछ मैं नया कोई डीलर ना बनाऊं, मेरी टीम में कोई नए सेल्स के लड़के को भी ना लाऊं, तो भी ये 12% का ग्रोथ है वो तो मिलने ही वाला है। लेकिन जी गुजरात में भी अगर समझो कि मेरे पास काफी ऐसे पॉकेट्स भी है, जैसे नॉर्थ गुजरात जो पोर्शन है वहां पर अभी अभी हमने डीलर अपॉइंट किए हैं कुछ 2-3 महीने पहले ही। तो जो ग्रोथ आने वाली है वो 12% की फिक्स गुजरात से आने वाली, ऐसा आप एज्यूम करके मत चलिए कि 12 गुजरात से तो सिर्फ 12% ही आएगी। जी जी। और तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर समझो, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसको भी हम पेनिट्रेट करते रहते हैं कि भाई अगर आपके पास आपके अंडर में 200 रिटेलर्स है तो अगले साल को आप 200 की जगह 250 रिटेलर्स कवर करिए। जो मेरे एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो चैनल है तो वहाँ भी हमारा पेनिट्रेशन रहता ही है। अगर मैं कंपटीशन बेच रहा है 250 रिटेलर्स के साथ, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर अगर वो 200 रिटेलर के साथ काम कर रहा है तो उसको भी हम पेनिट्रेट करते रहते हैं कि भाई आप अपना मार्केट शेयर बढ़ाओ। तो ये जो ग्रोथ है वो सिर्फ 12% का ही आएगा, ये आप ऐसा मत एज्यूम करके चलिए। सर, सो मे बी आई आस्क द क्वेश्चन डिफरेंटली। सो यस, मैंने बाकी 12% का का जो भी बताया वो ऑर्गेनिक नॉन ग्रोथ गुजरात, बताया। हाँ ये कि आप अगर मैं मेरा कुछ एफर्ट्स ना लगाऊं तो 12% तो मिनिमम आता है। लेकिन गुजरात जी में भी हम एफर्ट्स तो करते ही रहते हैं ना, नहीं तो फिर मेरा 35% जो है वो भी कम हो जाएगा अगर कुछ एफर्ट्स नहीं किया तो। लेकिन हमारा टारगेट रहता है कि हम सौराष्ट्र में जो 35 सॉरी गुजरात नहीं, सौराष्ट्र में 35% है, तो वहां पर भी मेरा मार्केट शेयर 35 से 40 कैसे हो उसके ऊपर भी एफर्ट्स तो रहते ही है।
नहीं सर, ऑफ कोर्स आपके एफर्ट्स तो रहेंगे। मेरा कहने का मतलब था कि जो नॉन गुजरात टेरिटरी है वहां पे ग्रोथ काफी हाई रहेगी, 30% से हाँ। काफी हाई रहेगी। तो यस। वहां पे क्या स्ट्रेटजी है कि दो तीन ऐसे चीज आप क्या कर रहे हो जिससे आपको लगता है कि डेफिनेटली ऐसे 40-50% ग्रोथ वो नॉन गुजरात स्टेट्स में आ सकता है? तो आपने एक बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स आप ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसका अगर कुछ उसका FY26 के लिए पूरा प्लान रहता है, आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है कि किसको अपॉइंट करेंगे? दूसरे कुछ इनिशिएटिव्स जो आप कर रहे हो उस पे थोड़ी बातचीत अगर हो सकती है तो वो अच्छा रहेगा। जी, डिस्ट्रीब्यूटर्स तो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। जो हमारी टीम रहती है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मिलते ही रहते हैं। अगर अच्छे कंडीशंस और उसका जो रिटेलर्स के साथ अच्छा स्कोप है काम करने का, तो वो अपॉइंट करके फिर काम भी शुरू कर देते हैं। अभी जैसे हमने ये साल 20 डिस्ट्रीब्यूटर नए जोड़े थे, तो अभी अगले साल के लिए हम 30-35 डिस्ट्रीब्यूटर का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है, और ये 20 तो नए जुड़े हैं, लेकिन बीच में ऐसा भी होता है कोई एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर डिसकंटिन्यू कर गया तो उसको भी नए डिस्ट्रीब्यूटर को भी जोड़ना। तो ये सब प्रोसेस तो कंटिन्यू चलता ही रहता है। और बाकी मैंने जो आपको सेल्स स्ट्रेटेजी बताई, अभी जो रेशा मैडम के क्वेश्चन का आंसर दिया, उसमें ऑलरेडी मैंने बताया कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं और कैसे नए एरिया में हम हमारी प्रेजेंस बढ़ाते हैं। वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। राइट। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है उसमें, अगर नए एरिया में जो बढ़ रहे हैं तो वहां पे आपके हिसाब से टॉप 2 चैलेंजेस क्या सबसे कठिन रहते हैं? एग्जिस्टिंग जो ब्रांड रहती है उसके साथ प्राइस मैच करना, उससे कुछ ज्यादा ऑफर करना, और रिटेलर के लिए कुछ स्कीम्स देना, ये सब चैलेंजेस रहते हैं। लेकिन ये तो क्या है कि एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस ही है सेल्स की। तो वो कुछ कहीं ना कहीं हम कैसे उसको क्रैक करना है, उसी के ऊपर टीम का फोकस रहता है। कि भाई अगर कोई नए एरिया में 3-4 ऐसे प्लेयर्स है कि वो उसका मार्केट क्रैक करना है, तो क्रैक करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हम प्राइस में नेगोशिएट कर सकते हैं, या तो मार्जिन्स में, या तो रिटेलर को कुछ एक अच्छा टारगेट बेस्ड स्कीम दे के अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सब प्रोसेस रहता है, और वो रीजन वाइज, रीजन टू रीजन डिफरेंट स्ट्रेटेजी लेके चलते रहते हैं। और एक और बात कि जो रिसीवेबल्स है, काफी कंपनी ऐसे रहती है कि रेवेन्यू बढ़ाने में रिसीवेबल भी बढ़ जाती है काफी, लेकिन फिर उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल रहता है बाद में। तो बस एक सलाह थी कि उस पे जरा प्लीज अगर हम ध्यान दे सके तो। आप वैसे भी दे रहे होगे ध्यान, लेकिन रिसीवेबल्स इससे ज्यादा अ, बढ़ेगा नहीं, राइट, नेक्स्ट 2-3 years? वो जो हमारा सेल्स ग्रो होगा उसके सामने तो रिसीवेबल्स हाँ हाँ, बढ़ने ही ऑफ वाले कोर्स, हैं, लेकिन हम एब्सोल्यूट में नहीं हाँ सर, कुछ, हाँ मतलब उसका हमारा, परसेंटेज में बोल रहा हूँ। हाँ हाँ वो परसेंटेज वाइज नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो वॉल्यूम वाइज है वो तो ऑफ डेफिनेटली कोर्स बढ़ेंगे। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स, वो तो ऑफ कोर्स। और दो चीज बस, अपना एनुअल रिपोर्ट में मैं देख रहा था, पुराने एनुअल रिपोर्ट में FY24 की, तो उसमें एक कंटिंजेंट लायबिलिटी थी। तो FY24 में 10 करोड़ की कंटिंजेंट लायबिलिटी है, पेज 99 पे। यस तो वो यस। बस पूछना था कि वो किस विषय पे? वो रिसीवेबल ही है। हमारा जो ट्रेडिंग जो बिजनेस है ना, उसमें कुछ हमने मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई दिया था। तो अभी वो पेमेंट कुछ हमारा फंसा हुआ है, लेकिन उसके सामने हमें कोलेट्रल्स मिल गए हैं, तो इस साल शायद वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस साल में वो पूरा अमाउंट मिलेगा, 10 करोड़? हाँ यस यस।
मतलब उसके अगेंस्ट हमने कोलेट्रल लिए हुए हैं, तो अगर वो पेमेंट आ जाता है तो लिक्विडेट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो कोलेट्रल लिक्विडेट करके कवर रिकवर करेंगे। ओके ओके। और दूसरी बात की FY24 एनुअल रिपोर्ट में सैलरीज मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन का डिटेल्स नहीं थे, तो FY24 या FY25 मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन डिटेल्स उसमें प्लीज ऐड कर दीजिए FY25। वो तो अभी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनेगा तो उसमें सब आ जाएगा। जी जी, नहीं FY24 में वो मेंशन नहीं किया था, तो अच्छा, एनुअल रिपोर्ट। FY24 की बात करें आप? ओके ओके। हाँ हाँ, राइट राइट। और लास्ट क्वेश्चन था कि वर्किंग कैपिटल डेज में अ, अगर आपने बताया रेवेन्यू इन्वेंट्री एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 30-35% हो सकता है, लेकिन अगर वर्किंग कैपिटल देखे तो उसका क्या कितना प्रतिशत रहेगा एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू? मैं नहीं समझा एक्चुअली आपका हाँ नहीं क्वेश्चन। ऋषित जी, कि समझो वर्किंग कैपिटल मतलब इन्वेंट्री रिसीवेबल्स क्रेडिट पीरियड को अगर हम एक साथ देखें तो हाँ एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा? समझो कि आपने बोला इन्वेंट्री है 35% रेवेन्यू का, तो वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा उसके हिसाब से? 20, 25, 30, वैसे कुछ कुछ आइडिया रहेगा उस ये पे गोइंग ये अहेड? ये इतना ही मेंटेन ही रहेगा इस पे। अभी इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल जो है वो मेरा ज्यादातर इन्वेंट्री और रिसीवेबल में ही रहता है। तो जो अगले साल के लिए हम प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं इन्वेंट्री का, तो उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल जो है वो जो अभी रेशियो चल रहा है तो उतना ही रहेगा। राइट राइट। और एक और था कि बस ऑन पाकिस्तान से हमारे यहाँ कोई स्पाइसेस इंपोर्ट होते थे पहले जो अभी नहीं हो रहे, और हम उसको नहीं, केटर कर सकते हैं ऐसे पाकिस्तान कुछ? से ये जो पिंक सोल्ट रहता है वो इंपोर्ट होता था, रॉक सोल्ट। तो अभी राइट। वहां से थोड़ा रूट होके आ रहा है, डायरेक्ट नहीं आ रहा है पाकिस्तान से। अच्छा, लेकिन अभी भी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है, लेकिन रूट होके आ रहा है तो थोड़ा प्राइस अप रहता है, लेकिन वो बढ़ तो के आ रहा है? मार्केट। हाँ बढ़ के आ रहा है। तो उसमें हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी वैसे नहीं है, राइट, अलग से? हाँ हम ऑलरेडी हमारा स्टॉक लेके चल रहे थे, तो उसमें हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि श्योर। ये रॉक सोल्ट का भी, हमारा पिंक सोल्ट जो हिमालयन सोल्ट आता है उसका भी काफी अच्छा हमारा बिजनेस है, तो वो उसमें हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा इस साल। जी जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। या थैंक यू थैंक यू। Thank you, Ronald. We'll take the next question from Arpit Goel. Arpit, you can unmute and go ahead, please. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो हमने एक वो रिलीज किया था कि क्वार्टरली रिजल्ट्स का, तो क्या FY26 में क्वार्टरली रिजल्ट्स कब आप अनाउंस करोगे? हाँ अभी हमारी कोशिश तो है कि हम क्वार्टरली डिक्लेयर करेंगे, और 99% हम क्वार्टरली रिजल्ट का कोशिश करेंगे कि ये FY26 से हम क्वार्टरली रिजल्ट दे पाए। ठीक है, तो फिर ये फर्स्ट क्वार्टर से रहेगा या फिर मतलब अभी H2 से ही रहेगा? शायद हम फर्स्ट क्वार्टर से इसको शुरू कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, Arpit. We'll take the next question from Mr. Sunil Kateshia. Mr. Sunil, you can unmute and go ahead, please. थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। मुझे एक बात पूछनी थी, ये जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, वहाँ पे हमने कुछ कोशिश कर रहे हैं इन फ्यूचर, या क्या कोई प्लान है हमारा? जियो अभी डीमार्ट वगैरह। हाँ जो पेन इंडिया जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, डी मार्ट हो गए, रिलायंस हो गए, वहां पर हमारा कुछ प्रेजेंस नहीं है। और लोकल जो ग्रोसरी सुपरमार्केट्स है, जैसे गुजरात में काफी सारे है, महाराष्ट्र में है, तो वहां पर ऑलरेडी हमारा सप्लाई है।
तो ये ओके डीमार्ट रिलायंस में अभी वो लोग क्या है कि उसका प्रोक्योरमेंट जो है वो सेंट्रली रहता है, तो वहां पर अभी हमें कुछ एंट्री नहीं मिली है। लेकिन इसके सामने हम लोग क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स में हमने काफी अच्छा पेनिट्रेशन अंडरस्टूड। किया हुआ है। तो ये पिछले 6 महीनों में हमने जो ई कॉमर्स पे हमारी सारी प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, तो वहां से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके। और गुजरात में मैंने देखा है कि भले ही बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जैसे जियो मार्ट वगैरह है, वैसे छोटे छोटे भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स है। वो भी आई मीन टॉक अबाउट लिस्टेड प्लेयर की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे भी कोई अप्रोच है या वी आर स्टिल रीचिंग आउट टू सुपरमार्केट्स? नहीं नहीं, मैंने वही बताया ना, जो बिग सुपरमार्केट से वहां पर हम हमारी प्रेजेंस नहीं है। लेकिन जो सिंगल या तो एक सिटी के लिए 4-5 सुपरमार्केट्स की चेन लेके जो सुपरमार्केट्स है, उस वहां पर तो हमारा ऑलरेडी सप्लाई है ही। जैसे अहमदाबाद में ओसिया मार्ट है, तो वहां पर हमारा हाँ करेक्ट, हाँ सप्लाई। आई वाज टॉकिंग अबाउट ओसिया मार्ट ओनली। हाँ, यस तो वहाँ यस, पे तो है। है हमारा ऑलरेडी ओसिया मार्ट में सप्लाई है हमारा। ओके ग्रेट। तो वो गुजरात तक लिमिटेड है क्योंकि ओसिया मार्ट हाँ, गुजरात और तो ऐसे राजस्थान में ऐसे जो, आई बिलीव। हाँ, जो छोटे सुपरमार्केट्स की जो चेन है, या तो ऐसे भी छोटे प्लेयर्स भी है कि सिर्फ अगर मैं बात करूँ राजकोट सिटी, तो सिटी में उसके 2-3 आउटलेट है, तो ऐसे काफी सारे मार्केट्स है। तो ये सब जितने भी ऐसे मार्केट है, वहां पर मेजोरिटी मार्केट्स में हमारी प्रोडक्ट्स की प्रेजेंस रहती है। हाँ करेक्ट। अच्छा, और एक बात मुझे पूछनी थी कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, मतलब एडवर्टाइजिंग इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बट एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे प्रेजेंस बहुत कम दिखती है। मैं गुजरात में इनफैक्ट मैं जामनगर भी आते जाते रहता हूँ, तो जामनगर में भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट कहीं मुझे दिखती नहीं है। और सो एज एन आई मीन बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, तो मुंबई में भी कुछ दिखता नहीं है मुझे, राजकोट में भी कभी देखा नहीं मैंने एडवर्टाइजमेंट। तो ये ऐसा कोई प्लान है? सीजन वाइज रहता है। अभी अभी आप अभी 3 महीने से हमारा मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है काफी बड़े लेवल पे। तो अभी आप सौराष्ट्र में कोई भी सेंटर में जाओगे, तो आपको डेफिनेटली डबल हाथी का होर्डिंग दिखेगा ही दिखेगा। या तो ओके कोई आपका पहचान वाला है तो आप पूछ सकते हो। इनफेक्ट राजकोट सिटी में हमने 65 होर्डिंग्स लगाए हैं, सिर्फ एक ओके सिटी ओके में। ओके ओके। और सो एज अच्छा, मुझे और एक पूछना था, हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है? हम सिर्फ स्पाइसेस में रहेंगे या मे बी अभी नहीं, अगले 5 साल में या 10 साल में कंपनी का विजन क्या है? सिर्फ स्पाइसेस ही करना है या कुछ आगे और कोई प्लान? भी हम हमारा जो विजन है वो तो स्पाइसेस के लिए ही है। लेकिन स्पाइसेस के साथ अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट रहती है, जैसे अभी हमारे स्पाइसेस के साथ जो हम ग्रोसरी प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर हमने विटाग्रीन के साथ जो इंस्टेंट मिक्स का जो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स है, तो ये अगर सिमिलर पोर्टफोलियो की कोई ऐसी प्रोडक्ट रहती है, तो हम उसको ऐड करते रहते हैं पोर्टफोलियो में। क्योंकि ओके कहीं ना कहीं स्पाइसेस के साथ ये प्रोडक्ट भी रिटेल स्टोर में जाती है, तो उसको हम एक स्पाइसेस के साथ इसको भी सेल कर सकते हैं। तो ये तो हमारा रूटीन प्रोसेस रहता है, हर साल कुछ ना कुछ हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमारा बढ़ाते ही रहते हैं। ओके ग्रेट। एंड एनी नियर फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन का प्लान है, कैपेक्स? हाँ, कुछ प्लान हम कर रहे हैं, उसको जल्दी डिक्लेयर करेंगे। कुछ अभी एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हो तो। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mr. Sunil. We'll take one last question from the line of Akshat Jain. Akshat, you can unmute and go ahead, please. Yes, sir. So you mentioned कि गुजरात में हमारा 70% हमारा रेवेन्यू उधर से आ रहा है, so that would be around 160 crores. So just wanted to understand that how has that grown over FY24 and similar for Maharashtra? यस यस, ये जो रहता है टोटल जो हमारा ब्रांडेड सेल है, उसमें ब्रांडेड सेल जो है मेरा 130 CR का रहा है। और टोटल 216 में से, तो 216 ये 130 में से 70% मेरा गुजरात से रहा है।
बाकी का जो ट्रेनिंग वाला जो है वो तो उसको हम काउंट ही नहीं करते कहीं पर। तो ये 130 में से 70% अगर हम गिनेंगे तो ऑलमोस्ट 90 CR हुआ गुजरात से मेरा। तो ये अगले साल के लिए अगर मैं उसको गिनूं तो ऑलमोस्ट इसको मैं 115 से 120 करोड़ के आसपास इसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुजरात से। Then ये फिगर FY24 में कितना था? FY24 में मैं बताऊँ तो ये था 70 CR गुजरात से। Okay, so 30% हमने गुजरात में भी ग्रो किया। यस यस। Sure. And so how are the other states doing, like Telangana, Goa, and are they like EBITDA break even? वहां पर अभी हमारा जो फोकस अभी हम कर रहे हैं वो नॉर्थ के स्टेट में कर रहे हैं। नॉर्थ में हमने काफी टीम भी डेवलप अच्छी की है। यूपी के लिए एक टीम एक्वायर की है और जम्मू कश्मीर में है और पंजाब में है। तो ये 3 जगह से काफी एक टीम और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना के हम काम कर रहे हैं। गोवा तेलंगाना में क्या है कि हमारे जो महाराष्ट्र की टीम है वो ही वहां से जाके मार्केट करके ऑर्डर प्लेस करती है। लेकिन ये जो नॉर्थ के स्टेट है वहाँ पर फोकस हम कुछ ज्यादा देख रहे हैं। यूपी काफी बड़ा मार्केट है तो वहाँ पर हमने पर्टिकुलर रीजन के लिए पर्टिकुलर टीम बना के रखी हुई है। तो ये जो अभी हम ग्रोथ का जो मेजोरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वहीं से आने की हमें उम्मीद है। Okay, and are these states break even for us? EBITDA break even? हाँ वो कोई मेजोरिटी हमें क्या है कि जो हमारा सेल्स टीम है और यहाँ से जो गुजरात के बाहर अगर माल जाता है तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में 3% का मुझे ज्यादा एक पोस्टिंग आता है। लेकिन वहाँ के लिए जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर रहता है वो कंपेयर टू गुजरात डिफरेंट मतलब हायर साइड हम रखते हैं MRP से लेके प्राइस लिस्ट तक का। Okay. Sir, and any कोई specifically reason जिसके वजह से हम लोग ने पहले MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो कि गुजरात महाराष्ट्र से कनेक्टेड भी है, उनको नहीं करके पहले हम लोग जम्मू कश्मीर, यूपी, पंजाब को। हाँ, ये जब हमने विटाग्रीन एक्वायर किया था तो उस हाँ। समय उसका ये जो अब 4 स्टेट है वहाँ पर काफी टीम और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो एक बनी हुई थी टीम तो वो काफी अच्छी थी। तो हमने उसी को ही कंटिन्यू किया इसीलिए वो स्टेट में हम लोग पहले गए थे कि हमें जो एग्जिस्टिंग वहाँ का नेटवर्क है उसका बेनिफिट मिल पाए और उसको लीवरेज लेके हम डबल हाथी को भी वहाँ प्रेजेंट कर पाए। तो विटा ग्रीन का जो नेटवर्क था उसी को हमने कंटिन्यू किया इसीलिए ये स्टेट में हम पहले फोकस कर रहे हैं। ओके, सो विटा ग्रीन का नॉर्थ साइड में जम्मू कश्मीर, पंजाब साइड में ज्यादा फोकस यस था यस। आपके। हाँ यस ओके, यूपी में भी। यूपी। ओके सर, एंड लाइक हमारा आपने क्विक कॉम एंड ई कॉम मेंशन किया, हमारा कितना बिजनेस उधर से आ रहा है? सी अभी कोई ऐसा परसेंटेज वाइज में तो इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है कि उसको हम परसेंटेज में भी काउंट कर पाए। लेकिन हाँ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो काफी ग्रोथ अच्छा आता है। मतलब अभी जब हमने 6 महीने पहले उसको लिस्टिंग किया था प्लेटफॉर्म्स पे तो सिर्फ अमेजोन पे किया था। फिर उसके बाद ये जियो मार्ट पे किया। अभी हम फ्लिपकार्ट और मीशो में भी अवेलेबल है। तो जब हमने लिस्ट किया था उस समय हमारा दिन का 4 से 5 ऑर्डर भी मुश्किल से आता था। आज हमारे पास ये चारों प्लेटफॉर्म मिलके 300 से ज्यादा पर डे ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी आ रही है। लेकिन ये ऑर्डर वैल्यू काफी कम रहती है इसकी। पर ये पूरे इंडिया में हम कहीं भी हमारी प्रोडक्ट जाएगी तो वहाँ प्रोडक्ट के लिए वो नोन हो जाएंगे कस्टमर्स। ओके,
Right. Thank you, Akshat. Sure. Thank you. So since this was the last question of the day, Rishi sir, would you like to give any closing comment before we end this conference call? यस यस सभी इन्वेस्टर को ये कॉन्फ्रेंस कॉल में आने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोग हमारी कंपनी के साथ अच्छे से जुड़े रहे, और मैं जो हमारा जो ये विजन है ये हम लोग हमारी टीम के साथ मिलके जो काम कर रहे हैं उसमें हम काफी श्योर है कि ये हम जो हमारे जो प्रोजेक्शन है वो लेके चल रहे हैं वो हम इजीली उसको अचीव कर पाएंगे। और आशा रखता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी जो कंपनी की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें आप भी हिस्सा बने, ये मेरी एक ख्वाहिश है। धन्यवाद। Thank you. Thank you to the management team for giving us their time, and thank you to all the participants for joining us on the call. This brings us to the end of today's conference call. You may all disconnect now. Thank you.